So good afternoon. Yesterday we have seen section 44AA, in which we were discussing about when a person is required to maintain books of accounts. So we have first seen for specified professionals, it will include legal, then CA, CS, CMA, then architect, engineers. So all these will come under specified professionals. So in their case, if their gross receipts of last 3 years exceeded 1,50,000, or their current year, in case of new business, their current year turnover or gross receipts likely to exceed 150, then they are required to maintain books of accounts. अभी books उसमें कौन कौन सा है? तो cash book, journal, ledger, carbon copies of numbered bills, then original bills which are issued for receipts, and then daily case register in case of medical professionals, and also the inventory records for drugs, medicines, and other consumables and accessories which are used in profession. So these are the documents or these are the records which a person is required to maintain. Now, in case you are a person whose turnover does not exceed 1,50,000, then you have to require means then you are required to maintain only those books which will make assessing officer understand how much is their income, and if he can compute your income based on that information, then it is sufficient. So that is considered as maintaining books of accounts. Then for persons we have seen who are not into specified profession or who are doing any other business, मतलब जो regular businessman है या फिर जो ये सब प्रोफेशन छोड़ के किसी प्रोफेशन में है, तो हमें दो चीज देखना है। एक तो उनका प्रॉफिट जो 120 के ऊपर होना चाहिए, एंड उनका टर्नओवर जो 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो गया लास्ट 3 साल में, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, with the help of which the assessing officer can calculate your income. तो ऑफिसर जिस हिसाब से आपका इनकम कंप्यूट कर पाएगा उतना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अभी इंडिविजुअल एचएफ के लिए ये लिमिट उन्होंने 2.5 लाख रखा है प्रॉफिट का, and the reason behind that is obviously if your income doesn't cross basic exemption limit, then you are not required to get into all this stuff. Then secondly, your turnover should be more than 25 lakhs, then you are required to maintain the books of accounts. Okay. Now here I just told you to read these two lines wherein they have given few sections, 44 AE, BB, BBB, 44 AD. So they have given certain sections wherein the income will be presumptive income. अभी वो कैसे compute करना है वो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, लेकिन there is a method in which the income would be computed. तो अगर एक स्पेसिफिक मेथड उनको बोला है कि इस तरीके से आपको बुक्स मेंटेन कर इस तरीके से आपको इनकम निकालना है, तो डू यू थिंक ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स आर देयर, बाकी सब उसको रिक्वायर मतलब मेंटेन करना पड़ेगा, जरूरत है क्या? तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट द इनकम, मतलब जो जो क्राइटेरिया बोला है वो सेक्शन में उतना क्राइटेरिया फुलफिल करने तक का भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा, still it is sufficient for the business, right? अभी वो सेक्शन क्या है तो वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे, but before that let us see for how many years you are required to maintain books of accounts. The books of accounts and other documents shall be kept and maintained for a period of 6 years. उसको अंडरलाइन करके रखो, ये MCQs में पूछ सकते हैं। 6 years from the relevant assessment year. मतलब असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 6 साल, मतलब एज गुड एज 8 इयर्स के लिए आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। देखो प्रीवियस ईयर, उसके बाद का असेसमेंट ईयर, उसके बाद 6 साल, मतलब 1 + 7 हो गया, तो टोटल इन शॉर्ट 8 इयर्स के लिए कम से कम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिडरिंग द ईयर इन विच यू जनरेट द इनकम। Secondly, if you are not maintaining the books of accounts, तो ये sections आपको याद रखना पड़ेगा। According to this section, who is required to maintain books of accounts is not maintaining books of accounts, then there is a penalty under section 271
to the extent of 25,000. तो 25,000 का आपको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा. तो ये पेनल्टी अगर आपको नहीं लगना चाहिए तो आप क्या करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टाइम पे मेंटेन करो. ऑलराइट. यस. अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं विच टॉक्स अबाउट टैक्स ऑडिट. तो ये टैक्स ऑडिट जो है वो क्यों जरूरी है. तो जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि अगर मुझे बोला बुक्स मेंटेन करो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैं खुद मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करूंगा. या फिर अगर मुझे कुछ इनकम दिखाना नहीं है तो मैं बुक्स में उसका एंट्री पास नहीं करूंगा. राइट. लेकिन ये इनकम अगर डिस्क्लोज करवाना है तो उनके लिए उन्होंने प्रोविजन रखा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फर्निश द रिपोर्ट. अभी पहले था ये रिपोर्ट ऑडिटर सबमिट करता था एसएससी को, जो डिपार्टमेंट के पास हार्ड कॉपी जाता था. अभी हार्ड कॉपी जाएगा तो डू यू थिंक ऑफिसर के पास इतना टाइम है कि वो हर एक हार्ड कॉपी आके चेक करता जाए या फिर हर एक पूरा का पूरा रिपोर्ट चेक करे. तो इट इज डिफिकल्ट. राइट. तो उसके लिए अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, जो जो टैक्स ऑडिटर्स है उनको रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा. अभी उससे दो चीजें कवर हो गई. एक तो उनको सीए का मेंबरशिप नंबर मिल गया जो पहले भी मिलता था, बट नाउ इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. उससे क्या होता है, अगर कोई भी बंदा जो सीए नहीं है फिर भी उसका नंबर लगा के ऑडिट कर रहा है या फिर ऐसा झूठा नाम लगा के ऑडिट कर रहा है, वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा. बिकॉज हम लोग मुंह पे तो बोल सकते हैं कि यस अ पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो फेक बोल सकता है लेकिन वो फेक नंबर तो नहीं दिखा सकता. एंड अगर फेक नंबर दिखा है तो क्या होगा, नंबर सिस्टम में डालने के बाद वो पकड़ा जाएगा ना, अगर किसी ने ऐसा झूठा कुछ करने की कोशिश की तो उसके लिए दे हैव केप्ट दिस पॉइंट दैट the audit should be done by a chartered accountant and then that chartered accountant report will be required to be submitted. लेकिन ये ऑडिट किस किस को करवाना है, तो let us understand the assessee carrying on business, the total sales or turnover of the business exceeds 1 crore. हाँ? तो आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर गया तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. और इफ यू आर कैरिंग आउट अ प्रोफेशन देन द ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड्स रुपीज 50 लाख. तो आपका ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख के ऊपर गया तो आपको क्या करना है, टैक्स ऑडिट करवा लेना पड़ेगा. लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है. अभी वो एक्सेप्शनल केस क्या है तो नीचे दिया है, exception where a person declares profits and gains of the previous year under section 44 AD. हाँ? अभी ये सेक्शन हम लोग इमीडिएटली देखेंगे जहां पे प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूट करते हैं एंड दैट प्रिजम्पटिव इनकम इज 8% ऑफ द टर्नओवर. आपका टर्नओवर जितना रहेगा उसका 8% या फिर 6% will be considered as your income depending on whether you have received cash or whether you have received via check payment. So accordingly you will decide how much is your income and how much is your tax liability. Right. अब ये प्रोविजन लाने का पर्पस क्या है, तो ये पर्पस है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको बिजनेस करने में ज्यादा इजीनेस आ जाए, मतलब उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो. इसके लिए उनको प्रोविजन रखा है कि आपको ऑडिट मतलब आपको टर्नओवर 2 करोड़ सॉरी 1 करोड़ तक रहेगा तो आपको ऑडिट नहीं करवाना है. सेकेंडली अगर 1 करोड़ के ऊपर गया लेकिन आप 44 एडी में कवर होते हैं तो 44 एडी का कंडीशन है कि आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक है तो आप 44 एडी में कवर हो सकते हो एंड आपका प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूट हो सकता है. एंड अगर आपका इनकम प्रिजम्पटिव की तरह कंप्यूट हो रहा है तो ना तो आपको बुक्स मेंटेन करना है ना तो आपको बुक्स को ऑडिट करना है. तो ये सिचुएशन में आपको टैक्स मतलब टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी नहीं करना पड़ेगा. अभी उसके लिए जानते हैं व्हाट इज सेक्शन 44 एडी. थोड़ा नीचे जाते हैं सर. हाँ बोलो. इधर वो उन लोग हर जगह ऐसा बोलते कि इट शुड बी ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, हाँ. तो हम लोग का नाम क्यों नहीं आता उस पे कॉस्ट अकाउंटेंट का? You are not authorized. You are authorized to do cost audit.
तो कॉस्ट ऑडिट जहाँ पे रहता है उधर चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम नहीं आता। ओके, ठीक है। जीएसटी का ऑडिट है, उधर दोनों को परमिशन, सीए एंड सीएम, वहां पे आपको दोनों का नाम दिखेगा। लेकिन कैसे होता है, हर एक प्रोफेशन चलना चाहिए ना, तो हर एक प्रोफेशन के लिए उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया रखा है। जैसे इनकम टैक्स का ऑडिट सिर्फ सीए करेगा, कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, लेकिन जीएसटी ऑडिट, अभी जीएसटी तो बहुत सारा ऑडिट करवाना पड़ेगा, वो तो सिर्फ सीए या सिर्फ सीए में नहीं कर पाएगा, इसके लिए वो ऑडिट दोनों को दे दी। हाँ ठीक है सर, और चलेगा। हाँ समझा। अभी 44 एडी सेक्शन देखते हैं हम लोग, व्हाट सेक्शन 44 एडी सेज। हाँ, अभी ये जो सेक्शंस है ना सब, 44 ए, एबी, एडी, एडीए एंड ई, एई, ये 5 सेक्शंस आपको अच्छे से याद रखना है सेक्शन नंबर के साथ। हाँ, मैं जिधर जिधर बोलता हूँ, मैंने आपको चैप्टर 6 से मैं बोला था टीडीएस आएगा जब भी चैप्टर, तभी उसमें, एंड यहाँ पे ये जो सेक्शंस है ये आपको बाहर रखना ही पड़ेगा, बिकॉज वो डायरेक्टली वो सेक्शन पे क्वेश्चन पूछा तो यू शुड बी एबल टू आंसर, एंड आपको अगर क्लिक नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड इट इज वेरी सिंपल। देखो, ए बुक्स मेंटेन करना है, ए बी में टैक्स ऑडिट करवाना है, एडी में प्रिजम्पटिव इनकम है बिजनेसमैन का, एंड एई में ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाले का है। तो वो हम लोग सेक्शन बाद में देखते हैं, पहले हम लोग सेक्शन 44 एडी देखते हैं। यस प्रीति, पढ़ो ये सेक्शन, इसको मार्क करके रखो, इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पेज नंबर 213 पे है। हाँ सर, computation of income on basis of estimation to give relief to small taxpayer from maintenance of books of account and from getting the accounts audited. The Income Tax Act has framed the presumptive taxation scheme under section 44 AD, 44 ADA and 44 AE. Computation of business profit and presumptive basis, section 44 AD, applicable to the resident, a resident individual, resident Hindu undivided family or a resident partnership firm. इसको अंडरलाइन करके रखो, दैट मीन्स ये तीनों को ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है। कौन कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म, बाकी किसी को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं। Note, the provision is not applicable in case of the following. First, limited liability partnership firm. Second, a person carrying on profession as referred to under section 44AA, a person earning income in nature of commission or brokerage, or a person carrying on any agency business, a person carrying on the business of plying, hiring or leasing goods carriages referred to in section 44 AE. Conditions: A. Eligible business. SSC must be engaged in any business other than the business referred above. B. Maximum turnover. Total turnover or gross received in the previous year of eligible business should not exceed 2 crore. C. Restriction on claiming deductions. The SEC has not claimed any deduction under Section 10AA or 80HH 280 RRB in the relevant assessment year. अभी देखो 80HH सेक्शन जो था, आपको सरप्राइज वगैरह ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये पहले था, अभी वो सेक्शन नहीं है। हाँ, तो 80HH टू 80 RRB में कौन कौन से सेक्शन आते हैं? तो बीच में आता है 80 QQB, देन 80 IA, IB, IC, ID, IE, वो सेक्शन का सीरीज है वो, देन QQB एंड 80 RRB। तो जो रॉयल्टी है या पेटेंट आपको मिलने वाला है बुक्स लिखने के लिए या फिर पेटेंट के लिए, आपको जो पैसा मिलेगा QQB या RRB में, वो डिडक्शन आपको इधर नहीं मिलेगा। सेकेंडली, आपके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, एंड एसएससी का बिजनेस जो ऊपर मेंशन किया वो छोड़ के कोई भी बिजनेस रहेगा तो चलेगा। हाँ? तो बेसिकली जो स्मॉल रिटेल शॉपकीपर्स है या फिर जो छोटे मोटे लेवल पे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा कि व्हाट दिस सेक्शन विल से, दैट only certain categories of people can go for this kind of activity or can go for this kind of presumptive income taxation,
तो इनका इनकम कैसे कंप्यूट होगा? एक तो इंडिविजुअल एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म टर्नओवर 2 करोड़ तक है and they are having income based on whether it is check payment or cash payment. You will decide the presumptive rate. अभी estimated income कैसे होगा? तो let us हाँ प्रिजेम्पटिव बिजनेस मतलब क्या? यही प्रिजम्पटिव इनकम मतलब हम लोग यहाँ पे रेगुलर इनकम का टैक्स कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, मतलब अजम्पशन पे इनकम। हाँ, मतलब जैसे बोला कि चलो प्रीति ने 5 घंटा पढ़ाई किया तो प्रीति ने एक दिन काम किया तो उसको 1000 रुपया दे दो, ऐसे एम्प्लॉयर ने डिसाइड कर दिया। हाँ, तो ये प्रिजम्पटिव हो गया। अभी वहां पे प्रीति कितना देर घंटा काम करती है वो सब देखने का नहीं, एक दिन शी इज वर्किंग, शी इज प्रेजेंट, तो शी शुड गेट 1000, राइट? तो इसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव इनकम। तो वैसे यहाँ पे भी जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसका हम लोग P&L बना के, उसका बैलेंस शीट बना के वो सब चेकिंग नहीं करेंगे। उसको कितना पैसा मिला रिटेलर को या छोटे बिजनेस वाले को, उसका 6% या 8% उसका इनकम होगा, इसको बोलेंगे प्रिजम्पटिव इनकम। हाँ, अभी ये प्रिजम्पटिव का मतलब क्या है? प्रिजम्पशन मतलब इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। डू यू थिंक उसका रियल इनकम एंड ये इनकम मैच होगा एक दूसरे से? नहीं सर। एक्चुअल प्रॉफिट है वो इससे मैच नहीं करेगा ना। लेकिन इनकम टैक्स इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। इनकम टैक्स क्या बोलता है, आप सीधा ये इनकम ले लो। मतलब सपोज एक एसएससी उसका 80 लाख पूरा कैश में उसको पैसा मिला, तो वो क्या करेगा 80 लाख का 8% मतलब कितना आएगा 6,40,000 वो कंसिडर करेगा कि 6,40,000 उसका इनकम है। तो अकॉर्डिंगली ही विल कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। तो रियलिटी में उसका प्रॉफिट 6,40,000 से ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, करेक्ट? तो उससे ज्यादा है उसका एक्चुअल प्रॉफिट सपोज 10 लाख है, फिर भी वो 80 लाख का 8% उसका इनकम पकड़ सकता है। एंड हाँ, अगर उसको खुद से ज्यादा इनकम डिस्क्लोज करना है तो प्रॉब्लम नहीं है, इनकम टैक्स परमिट्स। आप ज्यादा इनकम दिखाना है तो डिस्क्लोज कर सकते हो, लेकिन इससे कम इनकम आपको डिस्क्लोज नहीं करना। एंड इससे कम इनकम आपको डिस्क्लोज करना है तो आपको फिर बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा एंड बुक्स को ऑडिट भी करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर। हाँ, अभी यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, जहाँ पे चेक पेमेंट, ईसीएस या बैंक ट्रांसफर्स है तो वहां पे प्रिजम्पटिव इनकम का रेट 6% होगा। एंड जहाँ पे कैश पेमेंट, बेयरर चेक पेमेंट रहेगा तो उधर 8% ऑफ टर्नओवर ये आपका इनकम रहेगा। हाँ? तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा। चलो, अभी सपोज एक एसएससी का टर्नओवर, कैश टर्नओवर है 40 लाख एंड चेक पेमेंट मिला उसको, तो उसका इनकम अंडर सेक्शन 44 एडी कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज ही एलिजिबल फॉर दिस 44 एडी? ये इंडिविजुअल है और उसका ये टर्नओवर है। 1 करोड़ से एक्सीड हो रहा है और 2 करोड़ के अंदर है। हाँ, 2 करोड़ के अंदर है तो 2 करोड़ के अंदर है तो वो कर सकता है, बराबर। कैश के लिए उसको कितना ये कंसिडर करना है 8%, सो 3,20,000। एंड चेक के लिए $6,80,000। तो आप इमेजिन करो 1 करोड़ टर्नओवर होते हुए भी उसका इनकम कितना होगा? प्रिजम्पटिव इनकम 6,80,000 हो जाएगा। अभी समझा कैसे कंप्यूट करने का? अभी एसएससी इतना इनकम डिस्क्लोज कर सकता है, उसको सिर्फ क्या दिखाना है, उसका टर्नओवर है 1 करोड़ एंड उसका इनकम है 6,80,000। Now, if he wants to disclose 7 lakh as income, can he do it? 680 के जगह पे उसको 7 लाख इनकम दिखाना है, वो दिखा सकता है क्या?
सर बट वो परसेंटेज के हिसाब से तो नहीं आ रहा है, तो वो कैसे दिखाएगा? नहीं मतलब आप ऑफिसर के हिसाब से सोचो, अगर मैंने ज्यादा इनकम दिखाया तो चलेगा क्या? कोई ऐसा ज्यादा क्यों दिखाएगा? नहीं दिखाते हैं लोग। एंड मतलब उसका दो रीजन है, अगर आपको इनकम नहीं पता है तो लोन नहीं मिलता ना, तो उसके लिए दिखाना पड़ता है। हाँ सर, अभी इस केस में एक्चुअली 1 करोड़ तक इनकम जा रहा है, तो फिर भी मतलब मतलब टैक्स डिपार्टमेंट कैसा राजी होता है कि हम लोग 680 तक ही करें? मतलब टैक्स कम ही कितना कम आएगा, आएगा ही नहीं ऑलमोस्ट। हाँ बराबर। कैसे चलता है फिर डिपार्टमेंट को? देखो ये क्यों परमिशन है, बिकॉज जो छोटे बिजनेसमैन है ना उनका प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है। हाँ? अभी मैं एक्चुअली आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, आप शॉपकीपर का एग्जांपल ले लो। हाँ? वो सपोज बिस्किट का पैकेट आपको 20 में बेचता है। हाँ? तो उसको क्या वो 5 रुपए में मिलता रहेगा? नहीं, वो 15 वगैरह रहेगा, भले 5 रुपया मार्जिन रहेगा, पकड़ लो उसको। हाँ? लेकिन हाँ 20 उसका सेल पकड़ेंगे एंड प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपीज। हाँ, एंड ये रियल प्रॉफिट है क्या? नहीं, ये सिर्फ क्या हुआ, मैंने एक आपको बिस्किट का पैकेट बेचा तो मुझे 5 रुपए का सिर्फ प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसमें मैंने मेरा खर्चा पकड़ा ही नहीं है। मेरा रेंट, मेरे एम्प्लॉयज का कॉस्ट, स्टाफ का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इंटरनल कुछ करना पड़ेगा उसका बिल, कुछ लोन लिया रहेगा उसका इंटरेस्ट, बाकी जो एक्सपेंसेस है वो सब, ये मैंने कंसिडर किया है कि इसमें नहीं। तो ये सब जाने के बाद आपको क्या लगता है उसको कितना प्रॉफिट होगा? 2 रुपए का। तो ये कितना हुआ टर्नओवर के बेसिस पे? 20 का 10% के आसपास ही है। यस। हाँ, तो रियलिटी में दैट प्रॉफिट इज रियली लेस। हाँ, मतलब टर्नओवर दिखता है 1 करोड़, लेकिन रियलिटी में उसको जो रिटेलर्स को जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो इतना ज्यादा नहीं रहेगा ना। हाँ बराबर। हाँ, ये एक पार्ट हो। दूसरा पार्ट, अभी देखो ये आप उल्टा सोचो, आप ऑफिसर हो, मैं एसएससी हूँ। हाँ, अभी मैंने टर्नओवर 1 करोड़ बताया, मैंने आपको सब डॉक्यूमेंट्स दिखाया, इसमें आप मेरा अनडिस्क्लोज इनकम निकाल के कितना निकालोगे बताओ? मेरा इनकम 30-40 लाख तो नहीं हो सकता प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा क्या मैक्सिमम होगा, 10-12 10 लाख लाख। प्रॉफिट रहेगा, 14-13 लाख रहेगा। हाँ? तो सपोज मेरा इनकम 3 लाख से आपने बढ़ा दिया, तो 3 लाख से टैक्स कितना बढ़ेगा? 20% पकड़ लिया तो भी 50,000 50-60,000 के आसपास। लेकिन इतना छोटा बिजनेसमैन है तो उसका एक एक इनवॉइस कितने का रहेगा, मतलब बिल 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, आप ये सब चेक कर पाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, वो शॉपकीपर भी अगर मेंटेन करना चाहे तो इतना सबका डिटेल दे पाएगा आपको? नहीं, बराबर। तो ये दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, शॉपकीपर के पास जो माल उठाते हैं या रखते हैं वो तो आपने देखा रहेगा, वो डेली वर्कर जैसे रहते हैं। उसको बोला कि नहीं मैं तुम्हें चेक पेमेंट ही करूंगा, तो उसको चलेगा क्या? नहीं। कैश पेमेंट लगेगा। वो रिक्शा से सामान लेके आते हैं तो रिक्शा का बिल या इनवॉइस तो बनेगा नहीं, तो आप चेकिंग कैसे करोगे? करेक्ट। हाँ, तो ये छोटा छोटा सा बहुत सारा पॉइंट्स है कि आप एक्चुअल असेसमेंट नहीं कर सकते। वो बस से आया, डू यू एक्सपेक्ट हिम टू टेक ऑल द टिकट्स विथ हिम 5-5, 10-10 रुपए का? नहीं। वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो स्क्रूटिनी करने के बाद भी, आप स्क्रूटिनी कितना आपको डिटेल में जाना पड़ेगा सोचो, ये सब अंदर 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 इतना घुसने के बाद आपको थोड़ा कुछ अनडिस्क्लोज इनकम मिलेगा, बराबर? मतलब इसमें कम से कम आपको 1-1.5 महीना तो डालना पड़ेगा, 2 दिन में तो ये काम होने वाला है नहीं। हाँ। तो आपको सैलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना पे करेगा उतना ही आपने अनडिस्क्लोज टैक्स निकाला, तो कुछ मतलब है क्या? राइट। हाँ, तो इसके लिए डिपार्टमेंट क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है। जो छोटे बिजनेसमैन है उसको भी कट नहीं, ऑफिसर को भी कट। सी, ऑफिसर स्क्रूटिनी करना भी चाहे, बट एक ऑफिसर के पास कम से कम बोला मैं 1000 से 1500 तक रिटर्न आता है। वो उसको 365 डेज में खत्म कर, 365 भी नहीं, छुट्टी का दिन सेट छोड़ के 300 दिन पकड़। हाँ, तो चलो
साक्षी एक ऑफिसर है एंड शची एक ऑफिसर है, आपको क्या लगता है आप 300 दिन में 1000 रिटर्न कंप्लीट कर पाओगे चेकिंग, जिसमें आपको एसएससी का नाम पता फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, तो वो सब देख के आपको सब पता चलेगा कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। एंड सेकेंडली आपको इतना ही काम नहीं रहता, पुराना वाला केसेस भी है, को किसी ने पैन का एप्लीकेशन किया है, किसी का रजिस्ट्रेशन अब पेंडिंग है, या किसी ने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का या ट्रस्ट का अप्रूवल का फॉर्म फाइल किया है, किसका टीडीएस रिटर्न्स टाइम पे नहीं आया, ये सब आप चेक करोगे तो आप पागल नहीं हो जाओगे? दैट मीन्स, ये सब मेरा कहने का मतलब है, पर्पस है कि ऑफिसर को ये इजी नहीं है कि वो हर एक रिटर्न चेक कर पाए, बराबर? तो डिपार्टमेंट ने ये 3 सेक्शन लाके आइडिया क्या निकाला कि जिसका इनकम 1 करोड़ होता है उसको हमने बोला कि चलो तुम 6,80,000 पे टैक्स कितना आएगा, फिर भी मैं डिडक्शन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, 1.5 लाख का डिडक्शन कंसिडर कर दिया तो इसका इनकम कितना होगा? सपोज 1.5 लाख इसमें से लेस कर दिया, कौन सा 1.5 लाख बताओ? याद आ रहा है चैप्टर 6 से? ETC का। एटीसी, बराबर। एटीसी बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है, हाँ, तो एटीसी का 1.5 लाख पकड़ लिया, फिर भी उसका इनकम कितना होगा? 5,30,000। अभी 5,30,000 पे, अभी ये फिक्स नहीं है, अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगा, हाँ, तो 5,30,000 पे टैक्स आके कितना आएगा? 12,500 प्लस 6,000, 18,500, बराबर, प्लस सेस, हाँ, कुल मिला के सपोज सब पकड़ के 20,000 भी पकड़ लो टैक्स अप्रोक्सीमेट। अभी मुझे बताओ, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है एंड आपको 20,000 का टैक्स भरने को बोला, तो वुड यू माइंड पेइंग टैक्स? आप भी खुशी खुशी, हाँ, ये साक्षी, नहीं, मैंने नो बोला सर। हाँ हाँ, तो इट इज इजीली पॉसिबल 1 करोड़ इनकम के सामने 20,000 टैक्स भरना, तो आप भी बिना कुछ हिचकिचाए टैक्स भरोगे, मतलब एसएससी। सेकेंडली, ऑफिसर को भी इन डेप्थ जाके चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। तीसरा बात, हर एक एसएससी ऐसा नहीं रहता, हर एक एसएससी, देयर आर एसएससी जो ज्यादा इनकम डिस्क्लोज करते हैं, व्हिच इज गुड आल्सो, लाइक स्क्रूटिनी ना निकालने के लिए दिस इज द बेस्ट वे। बहुत सारे लोग थोड़ा ज्यादा इनकम दिखाते हैं, लाइक इवन आई सजेस्ट माय क्लाइंट्स की थोड़ा ज्यादा इनकम दिखा दो, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर, तो डिपार्टमेंट भी खुश होता है ना। मैंने 680 के जगह पे 7.5 लाख इनकम दिखा दी, तो एज एन ऑफिसर आप लोग भी खुश हो जाओगे ना कि एसएससी ऑनेस्टली खुद से दिखा रहा है इनकम, बराबर? तो इसके लिए इट बिकम्स अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर बोथ डिपार्टमेंट एंड द एसएससी, कि एसएससी को भी ज्यादा कटकट नहीं है। टर्नओवर दिखाओ, देखो टर्नओवर का प्रूफ रखना तो आसान है कि मैंने कितना सेल किया, बैंक स्टेटमेंट रखो, कैश का वाउचर्स रखो, बस। बाकी हर एक डेली इनवॉइसेस वगैरह नहीं रखा तो भी चल सकता है, या फिर कैश आप कितना डिपॉजिट करते जाते हो बैंक में, उतना भी आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया, तो भी इट इज इजीली पॉसिबल। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने दोनों के लिए काम आसान कर दिया कि इंडिविजुअल एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म को बोला कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है, एंड आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन वगैरह वो जो मतलब नॉट अलाउड एक्टिविटीज है वो छोड़ के कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपको हम लोग क्या करेंगे, प्रिजम्पटिव इनकम का रूल्स अप्लाई करेंगे, जहां पे कैश के लिए टर्नओवर का 8% एंड चेक के लिए टर्नओवर का 6% की तरीके से हम लोग इनकम दिखा सकते। Are you getting this? Huh? Secondly, there is a possibility that sometimes, not always, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसका इनकम 680 नहीं है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, बिजनेस में लॉसेस हो गया, जैसे अभी कोरोना के पीरियड में हो गया, लाइक कोई बिजनेसेस में देयर इज नो बिजनेस बट यू आर स्टिल पेइंग द रेंट। जैसे भी क्लास का ही देखो, मैं क्लास में तो बैठता नहीं हूँ, बट रेंट तो पे करना पड़ता ही है हर एक महीने का, प्लस जूम का फीस, प्लस बाकी जो सब्सक्रिप्शन है वो तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा हमें, बराबर? तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो रेगुलर मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो उतना नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। मतलब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट अगर देखा जाए तो इससे कम आएगा सपोज, तो एक्चुअल प्रॉफिट सपोज ये पर्सन का 5 लाख ही आए,
तो इनकम टैक्स बोलता है हो सकता है कि आपका इनकम कम आए, लेकिन कम आएगा तो डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम होगा कि नहीं, बताओ। चलो साक्षी बताओ, यू आर इनकम टैक्स ऑफिसर एंड 6,80,000 के जगह पे एसएससी ने 5 लाख इनकम बताया, तो विल यू हैव प्रॉब्लम विद दिस? वो अभी उतना ही है तो मुझे कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? क्या हुआ? आई मीन अगर उतना ही उसका प्रॉफिट आया नहीं कम मतलब प्रॉफिट मैंने ऐसे ही डिस्क्लोज कर दिया कि मैंने ये कम दिखाया ना मैंने, तो वॉन्ट यू आस्क फॉर चेकिंग डॉक्यूमेंटेशन? वो सब चेक होगा ना, उसका रिसिप्ट्स वगैरह करेक्ट सब। करेक्ट, हाँ। तो इसके लिए उन्होंने प्रोविजन रखा है कि जहां पे मैं ये इनकम डिस्क्लोज करता हूँ 680, तभी मुझे बुक्स मेंटेन नहीं करना, ऑडिट भी नहीं करवा। लेकिन अगर मैंने कम इनकम डिस्क्लोज किया तो ऑफिसर इज बाउंड टू आस्क अ क्वेश्चन कि इसका प्रूफ बताओ, बराबर। एंड प्रूफ बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा एंड ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। हाँ? तो मैंने अगर दोनों एक्टिविटीज किया, बुक्स मेंटेन भी किया एंड ऑडिट भी किया, तो फिर ऑफिसर क्या कर सकता है, ऑफिसर कैन परमिट लोअर डिस्क्लोजर ऑफ द इनकम। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो इतना, मतलब 680 जितना या फिर उससे ज्यादा इनकम डिस्क्लोज करना है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू। लेकिन अगर इससे कम इनकम डिस्क्लोज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा एंड ऑडिट करना पड़ेगा। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि ये थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए भी, देखो इस पे टैक्स कितना आया, लगभग 20,000 के आसपास आया, करेक्ट। ये 5 लाख के नीचे चला गया तो टैक्स कितना होगा, 0 होगा, करेक्ट। भी लेकिन ये 5 लाख डिस्क्लोज करने के लिए आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा एंड ऑडिट करवाना पड़ेगा। डू यू थिंक इट विल हैपन फ्री ऑफ कॉस्ट? नो। मुझे किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा एंड सीए को अपॉइंट करना पड़ेगा ऑडिट करने को, तो उसका फीस डेफिनेटली 20,000 से ज्यादा हो जाएगा। यस। तो व्हाट विल यू प्रेफर, आप टैक्स पे करना पसंद करोगे या किसी को अपॉइंट करोगे इसके लिए? प्रैक्टिकली अपॉइंट करेंगे ना। हाँ नहीं अपॉइंट करोगे, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होगा, अगर आप किसको अपॉइंट कर दिया, हाँ, तो एक अकाउंटेंट रख दिया, उसको कम से कम 3,000 तो सैलरी देना पड़ेगा, 2,000 तो देना पड़ेगा। हाँ 2,000 इंटू 12, 24,000। एंड ऑडिटर का फी वो एक 25-30,000 रहेगा। तो 20,000 बचाने के लिए वुड यू लाइक टू स्पेंड 49,000? नो। हाँ, तो प्रैक्टिकली भले आपका स्टैंड करेक्ट है कि आपका इनकम उतना नहीं है, लेकिन वो लोअर इनकम दिखाने के लिए अगर आपको इतना खर्चा करना है तो फिर भी आप क्या प्रेफर करोगे, जाने दो 20,000 टैक्स भर दो। हाँ, तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों से टैक्स रिकवर होता है कि जहाँ पे उनका इनकम एक्चुअली कम है, बट ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, जनरली कम रहते, बिकॉज मार्जिन ऑलरेडी कम परसेंटेज से रखा है। 6% एंड 8% इज एक्चुअली लेस परसेंटेज। जनरली 10% के आसपास प्रॉफिट होता है जनरल बिजनेसेस में, लेकिन 6 to 8% ही रखा है, तो दैट इज एन एडवांटेज। इससे भी कम रहता है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए बुक्स मेंटेन करके ऑडिट करना पड़ेगा। एट द मोस्ट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आउटसोर्स द वर्क ऑफ बुक मेंटेनेंस, वो एक थोड़ा आप कर सकते हो कि जिससे आपका कॉस्ट कम हो जाए थोड़ा, तो वो करके आप इनकम लोअर डिस्क्लोजर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स मेंटेन करके ऑडिट करवाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सर अभी आप बोले थे ना कि आप आपके क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि कम ही ज्यादा ही बताओ थोड़ा इनकम, हाँ हाँ, तो दैट टाइम तो उन लोग ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है ना आपको, आपका सजेशंस लेने में वगैरह पैसा, देन फिर भी आप क्यों ऐसा सजेस्ट करते हो कि ज्यादा ही दिखाओ? देखो एक बार स्क्रूटिनी आया ना, तो स्क्रूटिनी आया तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाजिरी लगेगा, ओके उधर जाना पड़ेगा, एंड वो हर एक हियरिंग का फीस रहता है, उससे मुझे तो प्रॉफिट है कि मैं इनकम टैक्स में जाऊंगा तो एवरी विजिट आई विल चार्ज, लेकिन वो उसका नुकसान है ना क्लाइंट। ओके, तभी और ज्यादा भरना पड़ता है।
हाँ मतलब सी फॉर एवरी विजिट रिटर्न फाइलिंग का कैसे वन टाइम फी होगा, लेकिन ये अगर ऑफिसर ने बुलाया तो एक विजिट में तो सब काम खत्म नहीं होगा। करेक्ट। एक विजिट पहले मिलके आना पड़ेगा, फिर वो पूछेगा ये डॉक्यूमेंट्स लो, फिर हम लोग सेकेंड टाइम जाएंगे, फिर वो वापस क्वेश्चन करेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंट विजिट्स, एंड वो विजिट के वजह से उसको अलग से बिलिंग करना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, तो वो बिलिंग का अननेसेसरी कॉस्ट क्लाइंट को ही आएगा ना अल्टीमेटली, तो उसका ही नुकसान है। तो बेटर है कि थोड़ा ऐसा नहीं कि 20-25% दिखाने का, 8% से थोड़ा ज्यादा 9-10% दिखाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो क्या होता है, ये दिखा भी दिया ना तो उसका चैप्टर 6 से रिडक्शन हम लोग ले लेते हैं, हाँ बराबर। वो लेके उसका टैक्स लायबिलिटी हार्डली एनीथिंग आता है, मतलब नॉट इवन दिस 20,000, इट कम्स इवन लेस, लोअर देन दिस। उनका ओके। टर्नओवर, मतलब मैं जिस क्लाइंट की बात करूं उसका टर्नओवर लगभग कितना 60-70 लाख के आसपास, तो 70 लाख पकड़ लो तो भी लगभग उसका 5.5-6 लाख के आसपास ही प्रिजम्पटिव इनकम हो, 5.5 भी नहीं, 5.5 के आसपास। तो उसमें से अगर मैंने चैप्टर 6 से लेस कर दिया तो टैक्सेबल में तो ज्यादा कुछ होता ही नहीं है ना, करंट ईयर में तो टैक्स आएगा ही नहीं उनको। लास्ट ईयर में अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर में 3.5 लाख तक का ये था, रिबेट था, 3.5 लाख के ऊपर जाता है तो टैक्स आता है, तो उनको हार्डली कुछ टैक्स आता है। तो उतना दिखाएंगे तो इट इज फ्री ना, देन इट इज फ्री फॉर एसएससी आल्सो एंड फॉर द डिपार्टमेंट आल्सो। करेक्ट, मतलब डिपार्टमेंट को भी कंफर्मिटी मिलेगा कि नहीं बाबा अच्छे से सब किया है। एंड सेकेंडली टैक्स भर दिया ना डिपार्टमेंट को थोड़ा बहुत, तो डिपार्टमेंट इज शान हैप्पी। हाँ, तो यू हैव टू कीप डिपार्टमेंट हैप्पी समटाइम्स। एंड सेकेंडली कैसे होता है, और एक उसका मेन पर्पस क्या है पता है, अभी उनको लोन लेना है फ्यूचर में, लाइक ही इज प्लानिंग टू परचेज अ प्रॉपर्टी, तो उसमें मैंने अगर कम इनकम डिस्क्लोज किया ना तो बैंक वाला ये सब समझेगा नहीं कि आपने 8% रखा या 6% रखा, बैंक वाला क्या बोलेगा सोचो, यू आर नॉट एबल टू अरे पे द आपका तो इंटरेस्ट। इनकम इतना ही है तो आपको मैं लोन कैसे सैंक्शन करूं, वो भी है ना। तो करेक्ट। तो फिर क्या होता है, फ्रॉम बोथ दीज एंगल्स यू हैव टू थिंक एंड सजेस्ट। हाँ, हर एक क्लाइंट के लिए ऐसा सजेस्ट नहीं करना पड़ता, बट फॉर दिस काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू विल हैव टू सजेस्ट इन दिस वे, सो दैट उनका दोनों काम हो जाए, डिपार्टमेंट भी खुश रहे, फिर बैंकर्स फ्यूचर में लोन लेना रहेगा तो बैंकर्स को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। गॉट इट सर। एंड उसका प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ, उसका प्रॉफिट नहीं रहता तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा उसको। ठीक है, ये पॉइंट सेक्शन समझ में आ गया 44 AD। हाँ सर। हाँ, however a taxpayer can voluntarily declare higher income, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। हाँ, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस, अभी ऑलरेडी मैंने प्रिजम्पटिव इनकम निकाल दिया, बराबर। अभी इसके बाद मुझे और कुछ एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, सीधी बात है। तो दिस इज ऑलरेडी नेट इनकम, तो इसके बाद और एक्स्ट्रा कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इट इज अज्यूम दैट इट इज ऑलरेडी अलाउड, मतलब ये डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद ही प्रॉफिट आया है, ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे। Then deductions, the above estimated income is aggregated with other income of the SSC and then chapter 6 से deductions are given, जैसे मैंने अभी बताया कि बाकी इनकम भी ऐड करके फिर हम लोग chapter 6 से deductions लेस कर देते। Then brought forward loss if any shall be subtracted from such estimated income as per the provisions of the act। अभी ये तो बताने की जरूरत नहीं, हमने चैप्टर सीखा है set off and carry forward of the losses, याद है वो चैप्टर? हाँ सर, फिर ये ऐसा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आएंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो हार्डली दे पे टैक्सेस, मतलब मैं अभी जिसकी बात कर रहा था ना उसका टैक्स 3-4 हजार भी नहीं आता, 2-3 हजार के आसपास आता, या एक टाइम थोड़ा ज्यादा था उसका टर्नओवर बढ़ा था तभी। अभी 60 लाख के बाद 3-4 हजार टैक्स मतलब नथिंग है। करेक्ट। देन
provisions is not applicable where an assessee, now this is important, declares a profit for any previous year in accordance with the provisions of this section and declares lower profit less than the specified percentage for any of the 5 assessment years to the previous years succeeding aforesaid. ये कुछ तो गलत हुआ है. 5 असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के उसके पीछे का 5 जो असेसमेंट ईयर्स है उसमें कोई भी साल में उसने लोअर इनकम क्लेम नहीं करना चाहिए. तो लोअर इनकम क्लेम करने से क्या होता है पता है, आप ऑडिट में आ जाते हो एंड आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक ये सेक्शन से आप क्या होते हैं, बाहर आ जाते. एंड एक बार बाहर आ गए तो फिर नेक्स्ट 5 साल आप उसके अंदर नहीं जा सकते. मतलब जो नेक्स्ट लाइन पे दिया, he shall not be eligible to claim the benefit of provisions of this section for 5 assessment year subsequent to that assessment year where he has claimed lower profit. जैसे मैंने अभी इधर आपको दिखाया ना ये कि सपोज एसएससी को ये लोअर प्रॉफिट दिखाना है 5 लाख, हाँ ये वो दिखा सकता है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये साल उसको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट 5 साल वो ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकता, तो उसको कंपलसरी नेक्स्ट 5 साल में बुक्स मेंटेन करके ऑडिट करवाना पड़ेगा. तो इन शॉर्ट डिपार्टमेंट बोलता है रहना है तो ये सेक्शन में शांति से रहो, नहीं तो बाहर चले जाओ सीधा, नहीं तो आओ ही मत. हाँ? देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको कंपल्शन नहीं कर रहा है ना कि आप 44 AD में आ जाओ करके, इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल. तो अगर आपको 44 AD में नहीं आना है तो आप नहीं आ सकते, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी. सपोज अभी सपोज प्रीति एंड एबी ये 2 बिजनेसमैन, एबी को सेक्शन 44 AD का बेनिफिट लेना है एंड प्रीति बोलती है मुझे नहीं लेना है, सो इट इज फाइन. लाइक डिपार्टमेंट कैन नॉट कंपेल द एसएससी कि आप 44 AD के अंदर ही रिटर्न फाइल करो. हाँ लेकिन एक बार जैसे मैंने एबी का एग्जांपल दिया कि एबी ने रिटर्न फाइल किया अंडर सेक्शन 44 AD, तो ऑफिसर क्या चेक करेगा, नेक्स्ट 5 साल के लिए उसके रिटर्न में क्या दिखना चाहिए, सेम सेक्शन अप्लाइड दिखना चाहिए. ऑलराइट, यस. वही नीचे उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक बार ये सेक्शन में आप आ गए तो नेक्स्ट 5 साल आपको उधर रहना पड़ेगा. Next, an assessee to whom provisions of 44 AD is applicable and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, he shall be required to maintain books of accounts, get those books of accounts audited under section 44 AB. तो suppose AB ने बिजनेस स्टार्ट किया 44 AD में उसने वो इनकम कंप्यूटेशन कर रहे, लेकिन AB का टर्नओवर वो साल में सडनली 2 करोड़ के जगह पे 2 करोड़ 10 लाख हो गए. हाँ? तो मुझे बताओ कैन एबी टेक सेक्शन 44 एबी का बेनिफिट, एडी का बेनिफिट अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ 10 लाख हो गया तो? नहीं सर. नहीं, वो कंपलसरी बाहर आ जाएगा बिकॉज ही हैज नॉट फुलफिल्ड दोस कंडीशंस. करेक्ट. एंड सिंस यू हैव क्रॉस दैट लिमिट, तो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बोलता फिर 44 एडी में ही रहने का. एक बार टर्नओवर क्रॉस हो गया तो आप रेगुलर बिजनेस में आ जाओगे. फिर रेगुलर बिजनेस में मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा एंड ये दोनों करके फिर आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल कर देना. आर यू गेटिंग दिस? ओके, अभी सेक्शन अभी उसका सम देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 19. Okay, X company, a firm engaged in business of trading of cloth. Turnover of the year is 57,80,000, out of which 25 lakhs is account paycheck. It wants to claim the following deduction. अभी ये deductions इसको दिया है: salary, salary to employees,
then depreciation, cost of material, other expenses, इतना करके उसका नेट प्रॉफिट आया है 25,000. Determine the net income of X and company for assessment year 2021, assuming that taxable interest income is 90,000, long-term capital gain is 1,40,000. Firm is eligible for 15,000 deduction under section 80G. अभी मुझे बताओ, can firm avail the benefit of section 44 AD? Yes, AB बताओ. Is firm eligible for section 44 AD? First of all, firm ले सकता है क्या? Yes sir, ले सकते हैं. Secondly, you check the turnover and tell me whether this firm X and company can take the benefit. Sir, Turnover करके check turnover and tell me have they fulfilled the criteria. 2 करोड़ के ऊपर है या 2 करोड़ के नहीं नीचे? सर, कम है. कम है तो 44 AD का बेनिफिट ले सकते हैं. Yes. तो 44 AD लिया तो कितना इनकम आएगा बताओ मुझे. चेक कितना है? 25 लाख. 25 लाख का 6% मतलब कितना होगा? 1,50,000. करेक्ट. एंड टोटल टर्नओवर कितना है? 82,80,000. 5780 है ना? 5780 है. हाँ. वो इंक्लूड है ना उसमें, ऐड मत करो. कैश पे 264,400 आ रहा है. तो ये कितना कैश कितना रहेगा? 32 लाख. 4280. यस. 3280. हाँ, उसका 8% कितना है? 262,400. Sir, but total turnover should exceed 1 crore ना? 57 लाख ही हुआ ना. 57,80,000. 1 crore के ऊपर होना चाहिए ना, लेकिन नहीं. 2 करोड़ के नीचे होना चाहिए. तो वो टैक्स ऑडिट में क्या था कंडीशन? टर्नओवर टैक्स ऑडिट में कंडीशन क्या था? जो भी एसएससी है उसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तो उसको टैक्स ऑडिट करना है. लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या था? हाँ, कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर गया लेकिन 2 करोड़ के नीचे है तो आप सेक्शन 44 एडी ले सकते हो क्या? यस. हाँ. एंड अगर 44 एडी सेक्शन लिया तो डू यू नीड टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड? नो. राइट. हाँ, तो 1 crore के ऊपर और 2 crore के नीचे होगा तो ना, तो यहाँ पे तो 57 ही है. नहीं वैसा नहीं है. See, that is only exception for 44 AB. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ए का टर्नओवर है 45 lakhs, बी का टर्नओवर है अभी मुझे बताओ 44 AB का ऑडिट करना पड़ेगा क्या? यस और नो? ए तो नहीं आएगा ना. करेक्ट. एंड यहाँ पे यस. सेकंड में भी यस. लेकिन फोर्टी फोर एडी ले सकते हैं क्या? ये 44 एडी के लिए कंडीशन यस, टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए. ले सकता है.
थर्ड में नहीं ले सकता। यस, सेकंड में भी ले सकता है, यस, एंड थर्ड में नो। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आया। तो सी तो दोनों के बाहर ही है, ना तो वो टैक्स ऑडिट से बच पाएगा, ना तो 44 एडी ले पाएगा। अभी एज फार एज ए इज कंसर्न, ए को तो टैक्स ऑडिट वैसे भी नहीं था एंड उसको ऑप्शन था कि उसको 44 एडी का प्रोविजन अप्लाई कर, तो वो कर सकता है क्या? तो आंसर इज यस, वो कर सकता है। यहाँ तक समझा? अच्छा, मतलब वो अभी लोग टैक्स ऑडिट नहीं भरते बट नॉट एक्सीडिंग 2 crores वो लोग क्लियर है। हाँ बराबर, 2 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, वो 44 एडी में कवर अप हो जाए। हाँ सर, समझा। एंड जो बी पार्टी है, मिस्टर बी है, उसको ये ऑप्शन है कि 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर गया, तो अगर उसने 44 एडी अप्लाई किया तो उसका आंसर आएगा टैक्स ऑडिट में नो। ये एक्सेप्शन की हम लोग बात कर रहे सर रिपीट कीजिए। सर मतलब अगर 44 एडी में अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो 44 एबी में नहीं मिलेगा। हैं। हाँ मतलब 44 एबी में आपको ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। हाँ ओके, बीच में मैं एक काम करता हूँ, सी सी का टर्नओवर है 150 लाख, उसको एप्लीकेबल है क्या? यस। अभी सी के पास देखो, यहाँ पे 2 लोग हैं, बी एंड सी। बी एंड सी दोनों का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर गया, हाँ? तो दोनों को टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, यस। लेकिन हमें ये चेक करना है वेदर बी एंड सी wants to apply 44 AD, उसमें से बी को 44 AD करना है अप्लाई, एंड सी बोलता है नहीं, मुझे 44 AD अप्लाई नहीं करना। कैन ही टेक द बेनिफिट? 44 AD नहीं लेना है? यस। यस। हाँ, तो अगर उसने 44 AD रिजेक्ट कर दिया तो सिंस हिज टर्नओवर इज मोर देन 1 CR उसको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। एंड बी के केस में बी ने चूज किया उसको 44 AD लेना है, एंड सिंस नाउ व्हाट इज द प्रोविजन, अगर आपको 44 AD लेना है तो आपको बुक्स भी मेंटेन नहीं करना एंड ऑडिट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये चॉइस उसके पास है। तो ये चॉइस क्यों आया? बिकॉज ही चूज टू get covered under section 44 AD। बी ने चूज किया कि मुझे 44 AD में आना है, तो 44 AD में आ गया तो वो इधर से बाहर चला गया, इधर से 44 AB से बाहर चला गया। हाँ, लेकिन सी ने चूज किया कि उसको 44 AD का बेनिफिट नहीं लेना है, तो सिंस हिज टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ उसको टैक्स ऑडिट तो करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस। यस, साक्ष्य भी क्लियर हुआ? यस सर, समझा। हाँ? अभी ऑन सेम लाइंस ये बंदा जो है उसका टर्नओवर कितना है? 57,80,000। अगर 57,80,000 टर्नओवर है तो कैन ही चूज टू गेट कवर्ड अंडर 44 AD? So repeat. If his turnover is 57,80,000, can he get covered under 44 AD? यस। Yes. Yes.
एंड एडी में आ गया तो उसका इनकम कितना होगा मुझे बता। 6 लाख, सॉरी ये 8% ही है क्या? कैश कहाँ? ये हाँ सर। 8% था ना? बराबर है। बराबर, हाँ। तो ये टोटल अलग आएगा, मतलब टोटल कितना आएगा एक बार देखो। 412 400 अभी करेक्ट है। तो मेरा इनकम, प्रेजम्पटिव इनकम आएगा 412 400। नाउ यू विल हैव टू चूज एंड टेल मी, would you like to show income as 4,12,400 or the actual profit which is disclosed in the profit and loss account? Actual profit उसका कितना आता है बताओ। एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिख रहा है उसका? 5780। 25,000 है ना? नेट प्रॉफिट सर 25,000। टर्नओवर दिखेगा ना सर? नहीं नहीं, इनकम प्रॉफिट कितना दिखे? 25,000। 25,000। तो ये दोनों में से क्या अच्छा रहेगा आपके लिए बताओ। 25,000 प्रॉफिट दिखाना अच्छा है या फिर ये 4,12,000 दिखाना अच्छा है? 4,12,000। ओके, उससे क्या होगा? फिर कुछ स्क्रूटिनी विटिनी नहीं आएगा, हम लोग को कुछ हाँ, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकली ठीक है, हाँ लेकिन अगर उसको कम इनकम दिखाना है तो कैन ही डू इट? यस। हाँ, तो एग्जाम में कैसे आंसर लिखो, देखो प्रैक्टिकली यू विल हैव टू चेक द कंडीशंस, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव आप क्या लिखोगे। अगर उसको कम इनकम डिस्क्लोज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। एंड ऑडिट करना पड़ेगा। हाँ, तो आप सीधा आंसर लिख दो। अगर उसको लोअर इनकम दिखाना है तो उसको बुक्स मेंटेन करना है एंड ऑडिट करना है। अगर उसको सेक्शन 44 एडी अप्लाई करना है तो उसको 4,12,000 इनकम दिखा के टैक्स कंप्यूट करना। दैट्स इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर अभी ये जो 4,12,400 है ना, वो अभी स्लैब वाइज डिवाइड भी होगा ना? हाँ, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस इनकम हुआ, आगे आपको अदर इनकम भी दिया है ना, हाँ मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो वो भी ऐड सब। हो जाएगा इसमें। ओके। हाँ, तो वो ऐड करके हमें चेक करना है कि आपका इनकम कितना होगा। ओके, तो हम लोग दो पार्ट करते हैं, एक तो है बिजनेस इनकम, दूसरा क्या है बताओ। एक्सेल दिख रहा है सबको? हाँ सर। बिजनेस इनकम, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड तीसरा क्या है? अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में क्या है? इंटरेस्ट। अभी हम लोग कंपैरेटिव देखते हैं। 44 एडी एप्लीकेबल, sorry, 44 AD is not applicable. अभी प्रिजम्पटिव इनकम कैसा आएगा? अभी हमने निकाला कैश, सॉरी टर्नओवर, उसमें क्या है? फर्स्ट चेक पेमेंट था ना? हाँ, अकाउंट पे चेक 25 lakhs।
टोटल कितना है? 57 80 है ना? अरे 1,50,000 है। तो आपने वर्किंग नोट बना के दिखा दिया कि आपका प्रिजम्पटिव इनकम कितना है। ओके 44 एडी एप्लीकेबल हो गया तो आपका इनकम कितना रहेगा एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल अदर सोर्सेस कितना है? 1,40,000 है लॉन्ग टर्म और अदर सोर्सेस 90,000। ओके एंड अगर 44 एडी एप्लीकेबल नहीं रहा तो सिर्फ 25,000 होगा। तो अभी मुझे बताओ इसमें से आप क्या चूज करोगे, कौन सा इनकम आपके लिए अच्छा है फ्रॉम टैक्स एंगल। ऐसा मत सोचो तो ज्यादा इनकम रहेगा तो ऐसे अच्छा लगेगा मेरे पास ज्यादा इनकम है, वो वाला नहीं। 2,55,000 वही अच्छा है बिकॉज वहां पे मेरा इनकम कम है। टैक्स स्लैब कम होगा। To reduce the tax liability, I will prefer to show lower income. And उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मुझे बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा एंड बुक्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? हाँ अभी समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अभी पहले ये आपको लिख के फिर मैं आपको नोट लिख के देता हूँ। लिख लो अभी, फिर मैं आपको नोट लिख के देता हूँ।
सर यस, इसमें हम लोग ने डिडक्शन ही नहीं दिखाया 15,000 का। डिडक्शन भी है। हाँ 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 हाँ। देखो अभी इधर ज्यादा फर्क पड़ेगा टैक्स में, क्योंकि ये फॉर्म है। फॉर्म का टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होता है याद है? फॉर्म के लिए टैक्स रेट कितना आता है? 30% ना। यस। तो सर अभी सीधा 6,27,400 पे 30% लगाएंगे तो वो टैक्स भरने का, यस यस और प्लस एजुकेशन सेस भी ना। यस यस। वो आप मुझे टैक्स कैलकुलेट करके अमाउंट बताओ कितना है। सर इधर रिलीफ के लिए क्या कंडीशन है क्या? नहीं नहीं, उसको फॉर्म को रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा हाँ।
Done, sir. Yeah. Yes, sir. Perfect. और हाँ सर, पर रिलीफ आता है ना फॉर्म को, पर इस केस में नहीं आएगा ना, 2,50,000 से ज्यादा है। नहीं, फर्म को रिलीफ नहीं आएगा ना, सिर्फ वो इंडिविजुअल एचयूएफ को ही रिलीफ है। मार्जिनल रिलीफ नहीं, मार्जिनल रिलीफ तो वो अलग। सरचार्ज। हाँ हाँ। तो अभी किधर टैक्स कम है? सिंस टैक्स पेबल इज लेस इन केस ऑफ 44 AD इज नॉट एप्लीकेबल। सो सबका लिख के हो गया? हाँ सर। हाँ, नोट लिखो नीचे। सिंस द टैक्स पेबल is less when section 44 AD is not applicable, सर वापस बोलो ना। since Since the total tax payable is less when section 44 AD is not applicable, therefore it is advisable to disclose income as per regular income tax provisions. But the presumptive income is less than presumptive income is less than presumptive income less नहीं, but the actual income is less than the presumptive income. Therefore, the firm is required to maintain books of accounts as per section 44AA and get the books of accounts audited Sir, as per section 44, AA and
therefore 44AA and get books of accounts audited and get books of accounts audited under section 44AB AB B for Bombay. क्लियर है? हाँ अभी नेक्स्ट सेक्शन के पास जाते हैं हम लोग 44 ADA. अर्पिता पढ़ो सेक्शन 44 ADA. Computation of professional income on presumptive basis, section 44 ADA. Applicable any resident assessee. Condition: engaged in profession, assessee must be engaged in any profession referred to section 44 AA, that is legal, medical, engineering, architectural profession or profession of accountancy, technical consultancy, interior decoration, etc. B. Maximum receipt. Gross receipt of the assessee in the previous year should not exceed 50 lakhs. Estimated income. 50% of the gross receipt. However, a taxpayer can voluntarily declare a higher income in his return. मतलब कोई भी प्रोफेशनल रहे, जो अभी जो हमने ऊपर देखे थे सेक्शन 44 AA के लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, इसमें से कोई भी प्रोफेशनल रहे तो वो प्रोफेशनल क्या कर सकते हैं, उसका जो भी टर्नओवर है, मतलब जो भी उसका रिसीट्स है, ग्रॉस रिसीट्स है, उसका 50% वो क्या कर सकता है, प्रिजम्पटिव इनकम कंसिडर कर सकता है, लेकिन उसके लिए मैक्सिमम टर्नओवर का लिमिट कितना है, 50 लाख। 50 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर गया तो आपके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, अभी मतलब अगर एक प्रोफेशनल है, हाँ, जिसने उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हाँ, एंड उसको प्रोफेशनल से 40 लाख का रिसीट्स मिल गया, तो उसका प्रिजम्पटिव इनकम कितना होगा? 40 लाख का उसको रिसीट्स मिल गया 50%. तो उसका 50% मतलब कितना होगा, 20 lakhs वुड बी कंसिडर्ड एज हिज इनकम। तो इसके हिसाब से हम लोग इनकम कंप्यूट करेंगे, लेकिन उसका ग्रॉस रिसीट्स अगर 60 लाख हो गया तो 30 lakh. 30 lakhs. 30 lakh, correct. नहीं, Okay. नहीं होगा, वो नहीं 50 होगा। लाख से एक्सीड 50 होगा। लाख नहीं तो होगा। फिर होगा। 50 लाख एक्सीड हो गया तो आप ये सेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? 50 लाख के ऊपर गए तो आपको 44 ADA एप्लीकेबल नहीं हो, एंड अगर 44 ADA एप्लीकेबल नहीं होगा तो naturally you cannot apply 50% as the standard rate of determining the income. Are you understanding? Yes. Yes. हाँ, अभी सर, आगे के, हाँ, वो आपने बोला कि 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट्स है ना, वो कभी निकालने का? अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें। मतलब अब अगर आप ये प्रोफेशन में हम लोग है तो अगर अपना इनकम 50 lakhs हुआ, उसका हाफ 25 lakhs, तो 25 lakhs आ सकता है ना इस पे? यस, 25 लाख तक इनकम आ सकता है, ओके। लेकिन आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख के ऊपर चला गया तो आप ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते।
इसमें फिर ग्रॉस रिसीट क्या होगा? 25 lakhs ना? 50 लाख, 50 लाख तक चलेगा। ग्रॉस रिसीट का 50% इज इनकम, 25 लाख उसका 50% आ गया ना। ओके, हाँ समझा। हम्म? लेकिन ग्रॉस रिसीट अगर मैंने दूसरा एग्जांपल दिया उसमें 60 लाख था, तो ग्रॉस रिसीट अगर 60 लाख है तो वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना उसको, सेक्शन 44 एडी मतलब उसमें 50% निकाल के भी कुछ फायदा नहीं है। वो निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज 44 एडी है, आपको एप्लीकेबल ही नहीं होगा। हाँ जैसे 44 एडी में मेरा टर्नओवर 2.5 करोड़ है, तो मैं 44 एडी ले सकता हूँ क्या? Can I apply 44 AD section if my turnover is 2 crore 50 lakh? नहीं, No, 2 crore does not 50 exceed. Yes, because 2 करोड़ एक्सीड नहीं होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे 50 लाख एक्सीड नहीं होना चाहिए। हाँ सर समझा। हाँ? अभी नीचे का जो भी पॉइंट्स है ना, आपको सब याद आ रहा है? ये हमने ऊपर देखा था, सेम टू सेम पॉइंट है। डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड, डेप्रिसिएशन अलाउड, हाँ, चैप्टर 6 से डिडक्शंस अदर देन दोज मेंशन अबव वो सब मिलेगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट कर पाएंगे। लोअर इनकम दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा एंड बुक्स का ऑडिट। ऑडिट करना। Section 3 पॉइंट्स है सब। यस, हाँ ओनली डिफरेंस इज एसएससी कैन चेंज हिज ऑप्शन फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो ऊपर क्या था, एक बार आप आ गए तो कम से कम आपको उधर 5 साल रुकना था, या एक टाइम आप बाहर गए तो आपको कम से कम 5 साल उससे बाहर रहना था। वैसे इधर नहीं, आप ईयर टू ईयर आपका ऑप्शन क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। बट देखो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते, बिकॉज दी प्रोफेशनल का इनकम 70-80% तो नहीं जाता ना। एज अ प्रोफेशनल आपका प्रॉफिट परसेंटेज 80-90% हो सकता है क्या? किस 80-90% मतलब समझा नहीं। मतलब आपको जो रिसीट्स मिला 10 लाख आपको मिला, तो उसमें आपको 9 लाख का प्रॉफिट होगा, ऐसे होगा क्या? नहीं, नहीं, तो प्रॉफिट परसेंटेज रफली 40-50% के आसपास ही रहता है। तो ये सेक्शन लाके इतना कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है, बिकॉज 50% है। देखो 50 इज गुड परसेंटेज ना, अच्छा खासा प्रॉफिट बोल रहे हो, तो 50% तो अगर प्रोफेशनल का है तो बहुत सारे लोग ये सेक्शन अप्लाई भी नहीं करते, बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम 50% दिखाना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये लेकिन कंप्यूटेशन, हाँ, ये जो कंप्यूटेशन के प्रोविजंस है ना, तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या अथॉरिटी इनकम टैक्स से कुछ लेना पड़ता है क्या कंपनी वालों को? देयर इज नो परमिशन रिक्वायर्ड, आपको सिर्फ Only रिटर्न profit में मिलता सीधा है। दिखा देना है कि मेरा टर्नओवर 50 के नीचे है, इसके लिए मैं ये सेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ। किसमें दिखाने क्या बोला आपने? क्या हुआ? नहीं, आप बोल रहे थे, मैंने रिटर्न्स बोला। में दिखाना पड़ेगा, ओके। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको दिखाना पड़ेगा कि आई वांट टू अप्लाई सेक्शन 44 एडी और एडीए और एई, ये आपको रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। रिटर्न में वाइल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हाँ मतलब नीचे ऐसे रिमार्क करके। हाँ, उधर वो सेक्शन नंबर ही आता है, ये सेक्शन में आपको रिटर्न फाइल करना है। हाँ, मतलब रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा। रीजन नहीं, ये सेक्शन में लिख दिया तो अब उनको पता चल जाता है कि हाँ, ऐसे ये सेक्शन में रिटर्न फाइल करना है। अभी नेक्स्ट सेक्शन है 44 एई सेक्शन। अभी ये मेन इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम का कंसेप्ट याद रखो, आगे के पॉइंट वापस सेम रहेंगे। अभी ये प्रिजम्पटिव इनकम यहाँ पे कैसे होगा, तो लेट अस लुक एट दोस पॉइंट्स। शची पढ़ो ये एई सेक्शन। business of playing, leasing or hiring goods carriage, section 44A, applicable to all assessee engaged in the business of plying, hiring or leasing goods carriage. इसको अंडरलाइन करके रखो। ये बिजनेस में कोई भी रहेगा, मतलब जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाले रहते हैं, ट्रक में आपका सामान भर के दूसरे जगह पे लेके जाते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज रहते हैं, वो सब ये सेक्शन 44 ए में कवर अप हो सकता है। देन Number of carriages. Assessee
must not own more than 10 goods carriage at any time during the previous year. Owner इसको भी of अंडरलाइन carriage. करके रखो. ऊपर कैसे टर्नओवर का कंडीशन था ना, वैसे इधर टर्नओवर का कंडीशन नहीं. उनका क्या बोलना है कि ट्रक्स आपके पास, मतलब गुड्स कैरेज मतलब ट्रक या व्हीकल हम लोग उसको बोलते हैं, तो वो 10 के ऊपर नहीं होना चाहिए आपके नाम पे. 10 के ऊपर रहेगा तो आप ये सेक्शन से बाहर चले जाओ. Owner of carriages includes a buyer under hire purchase or installment system, even if the whole amount is unpaid. Goods carriage means any motor vehicle constructed or adopted for use solely for the carriage of goods, or any motor vehicle not so constructed or adopted when used for the carriage of goods. Income from each goods carriage shall be type of goods carriage and presumptive income per month or part of a month. Heavy, rupees 1000 per ton of gross vehicle weight or unladen weight. सर ये क्या होता है unladen weight? मतलब ये सामान कैरी किए बिना का वेटेज. Okay. And in other goods carriage, presumptive income is rupees 7,500. First is income shall be calculated from the month when assessee acquired the property, whether it has been put to use or not. And second, an assessee can declare higher income. तो यहाँ पे देखो, हेवी व्हीकल एंड लाइट व्हीकल भी. हेवी मतलब क्या, जिसका वेटेज 12,000 से ज्यादा है, नीचे दिया रहेगा मतलब लॉरी वगैरह. किधर दिया नहीं है ना, फर्स्ट लाइन में है ना, नेक्स्ट पेज. हाँ बराबर. 12,000 kg से ज्यादा आपका वेटेज रहेगा, आपका मतलब व्हीकल का, तो उसको हम लोग हेवी व्हीकल ट्रीट करेंगे. एंड 12,000 kg से कम रहेगा तो उसको लाइट व्हीकल कंसिडर करेंगे. तो 12,000 से वेटेज कितना भी कम हो, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 11,000, कितना भी वेटेज रहे, आपका इनकम कितना रहेगा, 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. अभी पार्ट ऑफ द मंथ का मीनिंग क्या है, आप 1 अप्रैल को लो या 30 अप्रैल को लो, जिस मंथ में आपने उसको बाय कर दिया उस मंथ से आपका मीटर डाउन. मतलब अगर कोई भी पर्सन ने लेटेस्ट से 25 अप्रैल को अर्पिता ने ट्रक परचेज किया, हाँ, तो अप्रैल पकड़ना है या पकड़ना नहीं है इनकम कंप्यूटेशन के लिए? डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे. नहीं, इधर लकीली और अनलकीली जो महीने में आपने परचेज किया अप्रैल में, तो अप्रैल महीना पूरा 7,500 आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है ना. तो भले ही आपने 25 अप्रैल को भी परचेज किया, तो 12 महीने के लिए हम लोग उसका इनकम कंप्यूटेशन करेंगे. हाँ, अभी अर्पिता के पास ये चॉइस है कि 25 अप्रैल के जगह पे उसने अगर 1 मई को वो ट्रक परचेज किया, तो वो इनकम हम लोग कितने महीने का पकड़ेंगे? 11, बराबर. 11 महीने का. क्योंकि मैं 1 मई से परचेज किया, मतलब अप्रैल महीना काउंट ही नहीं हुआ. हाँ, तो ये आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो कि अगर आपको इतना घाई नहीं है परचेज करने का, तो परचेज इट इन द नेक्स्ट मंथ, सो दैट आपका 1 महीने का इनकम बच जाए. बट वो भी ज्यादा नहीं. देखो, पर मंथ 1 महीने में एक ट्रक का इनकम 7,500. अभी उतना भी इनकम ना दे तो ट्रक परचेज करके मतलब क्या है? देखो, ट्रक परचेज करने का कॉस्ट कम से कम करोड़ के आसपास जाता है, या 70-80 लाख के ऊपर तो जाता ही है एक ट्रक परचेज करने का. अभी उससे अगर आपको 7,500-8,000 भी नहीं मिला मंथली, तो वो इन्वेस्टमेंट का पर्पज ही नहीं है ना, इतना इन्वेस्टमेंट करने का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो सपोज अर्पिता के पास 10 ट्रक है एंड उसने अप्रैल से मार्च तक 10 ट्रक यूज किया, एंड हर एक ट्रक का वेटेज 10,000 kg है, तो उसका प्रिजम्पटिव इनकम कितना होगा? 7,500 इंटू 12 इंटू 10, उतना उसका प्रिजम्पटिव इनकम रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
हाँ यस। अभी नीचे के जो पॉइंट्स है वो सेम है। हेवी गुड्स व्हीकल सिर्फ हमने देखा 12,000 kg, डिडक्शन इज अलाउड। देन हाँ, ये पॉइंट एक सिर्फ नया है। इन केस ऑफ फर्म, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर अंडर सेक्शन 40B शैल बी फर्दर डिडक्टिबल फ्रॉम द इनकम सो कंप्यूटेड। हाँ, मतलब पार्टनरशिप फर्म में एक पॉइंट आता है कि पार्टनर्स को कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए या फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना देना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट या वो रेम्यूनरेशन हम लोग अलग से बेनिफिट दे देंगे उसको। Depreciation is already assumed to be allowed. Then deductions, chapter 6 से deductions are assumed to be already claimed. Then brought forward loss we can adjust. Lower income disclose करना है तो दो चीज क्या करना पड़ेगा, लोअर इनकम डिस्क्लोज करना है तो अकाउंट्स मेंटेन करो और ऑडिट करो। ऑडिट करो। परफेक्ट। सर अभी ये नींद से उठाएंगे तो भी नहीं बोलेंगे। इफेक्ट इफ एसएससी डिक्लेयर्स लोअर इनकम, उसको हाँ ये वापस वही लिखना है, उसको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। एंड एसएससी कैन चेंज द ऑप्शन फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस एसएससी क्या कर सकता है, ये ऑप्शन जो है वो चेंज कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ तक Yes. समझ में? हाँ। अभी ये जो सम है ना वो हम लोग कल करते हैं बिकॉज इट विल टेक टाइम फॉर कंप्लीशन। या आप घर पे ट्राई करोगे ये इनकम इलस्ट्रेशन नंबर 20 ट्राई करते हैं ना। ट्राई करो। ऊपर जो रूल दिया है ना प्रिजम्पटिव इनकम का कि पर हेवी रहेगा तो 1000 पर टन पर ट्रक एंड लाइट व्हीकल रहेगा तो 7,500 पर मंथ पर ट्रक, उसके हिसाब से आपको इनकम कंपटीशन करना। हाँ, तो आज का पांचों सेक्शन पसंद आया? 44AA किसके लिए था? Maintain books of accounts. 44AB किसके लिए था? Books should be audited. ऑडिट। परफेक्ट। 44AD किसके लिए था? प्रिजम्पटिव Present इनकम, जहाँ पे टर्नओवर का 6% या 8% के हिसाब से इनकम निकालते, उसके लिए क्राइटेरिया कितना है टर्नओवर का? 2 Not exceeding 2 crore. देन 44ADA वो प्रोफेशनल के लिए है, उसमें टर्नओवर का ग्रॉस रिसीट का क्राइटेरिया कितना है? 50 lakhs. 50% of gross profit Yes. and not exceeding 50 lakhs. Yes, 50% of gross receipts. हाँ. Then 44AE उसमें टर्नओवर का कुछ लिमिट है क्या? नहीं। नहीं, तो लिमिट नहीं, बट 7,500 का है। गुड्स कैरेज व्हीकल का लिमिट है। कितना ट्रक्स हम लोग कैरी कर सकते हैं? 10 से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 10 ट्रक्स यू कैन कैरी। एंड 12,000 kg से कम वेट रहेगा तो लाइट व्हीकल रहेगा, उसमें इनकम होगा 7,500 एंड उससे ज्यादा रहेगा तो 1000 पर मंथ पर ट्रक के हिसाब से इनकम। ये पसंद है सब सेक्शन? हाँ सर, ये जो 7,500 वाला है ना, उसमें वो स्टैंडर्ड ना, उसमें हम लोग को इंटू टर्न वगैरह नहीं करना है। इंटू टन भी नहीं करना है, 5 1000 में करना है। हाँ, सिर्फ इंटू 5 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। ओके ओके, मंथ्स और व्हीकल का नंबर इंटू में करना है। बराबर, मतलब 7,500 इंटू नंबर ऑफ व्हीकल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। समझा सर हाँ सर कल का लेक्चर का डाउट है मेरे को एक। बोलो ना। उसमें ना कल आपने वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न सिखाया है ना, हाँ, तो उसमें आपने बोला कि अगर फाइलिंग रिटर्न करना है तो करंट ईयर पे पे करना है। तो कल के एग्जाम्पल पे करंट ईयर 2020 और 21 है ना? नहीं 1920 था। 20 कैसे हुआ? वो प्रीवियस ईयर हुआ ना। एक मिनट, कौन सा एग्जाम?
एक्सेल शीट में दिखा था आपने। ये वाला? नहीं ये नहीं सर, कल के लेक्चर का। TDS? हाँ ये, हाँ हाँ ये वाला, हाँ बोलो। ये नहीं, अभी पहले दिखाया ना वो। ये वाला? हाँ हाँ। हाँ। तो करंट ईयर पे पे करना है तो 2020-21 में आएगा ना? देखो करंट ईयर वैसा करंट नहीं, अपना प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रीवियस ईयर कौन सा है बताओ? 2019-20। करेक्ट। तो 1920 का आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा, बराबर? हाँ हाँ, अभी वो इनकम कंप्यूट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक आपको टैक्स डिपॉजिट करना है। हाँ, अभी ये ईयर कब से कब तक रहता है? 2019-20। इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 मार्च। 2020। हाँ अभी इसके आगे, हाँ मतलब इसका रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या रहेगा? साल खत्म होने के बाद ही रहेगा ना? हाँ, मतलब अगर इंडिविजुअल देख रहे हैं तो 1 जुलाई आएगा, नहीं 31 जुलाई आएगा। करेक्ट, ये इंडिविजुअल रहेगा तो। एंड अगर कंपनी रहेगा तो इसके जगह पे 30 सितंबर आएगा। परफेक्ट। तो सर मतलब अगर ये 1 जुलाई 2019 टू 31 जुलाई 20, नहीं 31 जुलाई 2019 टू 31 जुलाई 2020 तक अपन पे कर सकते हैं। नहीं, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई 20 तक पे कर सकते कभी भी। ओके, मतलब अप्रैल भी गिनने का। अप्रैल भी गिनने का, बिकॉज यूजुअली रूल कैसे होता है, मैं अप्रैल का टैक्स डिडक्ट करता हूँ, वो मुझे नेक्स्ट मंथ में मतलब 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को डिपॉजिट करना। ओके हाँ। अप्रैल का टैक्स मई मंथ से डिपॉजिट कर। मतलब 1 मंथ आगे। हाँ, 1 मंथ आगे, 7th ऑफ नेक्स्ट। हाँ सर समझा। बाकी सब पॉइंट क्लियर था कल के लेक्चर? हाँ, और मतलब अभी करंट ईयर तो फिर 2019-20 में पे करना है ना अभी? हाँ, 1920 में पे करना है या फिर टिल ये डेट, रिटर्न फाइलिंग के डेट तक आपको पे कर देना है इन शॉर्ट। हाँ सर ठीक है, समझा। चलो, एनी अदर डाउट्स? नहीं सर। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं वापस। हाँ, अभी आप ब्रेक ले लो एंड फिर लॉ का लेक्चर रहेगा।